गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीरो एरर क्लासरूम। आज हम चर्चा करेगा जो हमारा टॉपिक था सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस का। फर्स्ट में हमने जो वीडियो कंप्लीट किया है आपने देखा होगा, जो सरफेस फिनिशिंग करता है, जो मटेरियल नहीं तो जो पार्ट्स कॉम्पोनेंट के ऊपर लाइट माइक्रोन मटेरियल निकाल के उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशिंग हम कैसे करता है। लेकिन अभी जो है सेकंड है, वी वांट ऐड सम मटेरियल ऑन पार्ट्स component etc. So there is some system we want follow. The surface finishing process include coating of the metallic surface for finish, decoration of or protection. ये जो surface finishing generally hint करता है, you protect the component, protect the parts after surface finishing. So they are recommended different type of process we want to do. The surface finishing process include coating of the metallic surface for finish. So finish के लिए coating करना पड़ता है। जो पहले जो हमने देखा है, जो finishing के लिए light material we want remove from the material surfaces. इसमें 6 प्रकार की प्रोसेस दिया हुआ है: galvanizing, metal spraying, anodizing, electroplating, inorganic coating और painting. ये जो भी प्रोसेस आपको करना है, द एंड ऑफ द शेपिंग प्रोसेस, जो कंपोनेंट को आप मशीन में तैयार होने के बाद में ये प्रोसेस करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, आप ये जो नोट्स अच्छे से पढ़ के इसको नोट करके यू मेक ए रिकॉर्ड, क्योंकि ये जनरली मिलता नहीं है। वर्षों प्रैक्टिस के आधार पर मैं जो सिखा रही आपको, यू जस्ट अंडरस्टैंड। ये सरफेस फिनिशिंग के अंदर इतनी प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में हमने 8 टाइप का प्रोसेस बताया था, अब ये कोटिंग के ऊपर 6 प्रोसेस हम बता रहे। तो आप अच्छे से पढ़ो और इसको नोट करो, आगे बढ़ो। सो वी विल स्टार्ट द क्लास। द सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस इंक्लूड कोटिंग ऑफ द मेटालिक सरफेस फॉर फिनिश, डेकोरेशन और प्रोटेक्शन। सो दे आर as follows: galvanizing, metal spraying, anodizing, electroplating, inorganic coating and painting. 6 टाइप का प्रोसेस इधर दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस galvanizing. इज ए वेरी पॉपुलर कोटिंग, यू नो दैट GI पाइप जो भी आपका ये वाटर लाइन में यूज़ करता है, इसको जनरली GI पाइप पहले रिकमेंड करके यूज़ करता था, इसलिए galvanizing इतना प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन क्या है galvanizing ये पता चलना चाहिए। galvanization और galvanizing is the process of applying a protective zinc coating to steel or iron to prevent rusting. रेस्टिंग को बंद करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जिंक कोटिंग जो स्टील का और आयरन के ऊपर जो करता है उसको गैल्वेनाइजिंग बताता है। द मोस्ट कॉमन मेथड इज टू हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग। जो हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग में उसको परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री फॉलो करता है। इन विच द पार्ट्स आर कोटेड बाय सबर्जिंग दम इन ए बाथ ऑफ हॉट मोल्टन जिंक। जो मोल्टन जिंक का जो बात है उसको अंदर इसको डुबाना पड़ता है। फॉर मोस्ट फेरस मटेरियल, उसमें फेरस मटेरियल फर्स्ट सिलेक्शन होता है, देन कास्ट आयरन, देन मैलिबल आयरन, देन कास्ट स्टील एक्सेट्रा। दिस आर द मटेरियल वी आर जनरली यूजिंग फॉर galvanizing purposes. So after the completion of galvanizing process, you see the channel after that galvanizing process done on the surfaces. Here also some bracket is shown, here some suspension point of brackets है, ये सब after the completion of galvanizing. So इस main उद्देश्य क्या है? Prevent dusting when you are using. So next you see that step you want to follow for typical galvanizing process. First you degrease, you clean thoroughly, then you have to do the rinse, then chemical cleaning. By help of chemical you have to clean the surface where you want to do the galvanizing, then again rinse, then flux you have to use or applying on the body, then dry, then immerse in molten zinc and clean by water. So these are the process we are doing for getting good performance of galvanizing process. Now next is metal spraying. Metal spraying also a depositing of the material on the surface. It is a process using high degree of heat in order to achieve a molten state. Here also you want to
to molten stage of material, you want to spray on some material. So once the molten state is achieved, the material is then meticulously atomized into tiny particles, then sprayed on to surface you are working with. So here we have to very care you have to take. We are doing the metal spraying. Otherwise, the tiny particle, the atomized tiny particle will be disturbed, then the surface will not be in a good condition. So that we are use the correct voltage, correct pressure air, then you have to use the wire feed control. Yeah, according to that wire feed control में इसके अंदर का जो नोसिल कंट्रोल होता है उसके हिसाब से प्रेशर और इसका जो हीट मटेरियल जाके इसको ये सरफेस को हीट करेगा. इसलिए इजी है, बट देयर इज सम गन वी आर यूजिंग फॉर मेटल स्प्रेइंग. ये जो सरफेस के ऊपर मेटल स्प्रे में करके ये नया सरफेस बना रहे. इज़ ए वेरी इजी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. So now next is anodizing. Anodizing, it is work by immersing a metal parts into an acid electrolyte bath. Acid electrolyte bath में वर्कपीस को immerse करता है, and electrifying both the part and the solution. Electrifying होता है जो part जो डुबा हुआ है वो solution भी. It is an electrochemical process. This process is called just like an electrochemical process that turn the part metal surface into a durable and attractive anodic ऑक्सीड फिनिश. आपका जो सुंदर दामे बनाना है, आपको इसका जो क्वालिटी है आपको मेंटेन करना है, हाईली सरफेस फिनिशिंग मिलना है, ये सब एनोडाइजिंग कर सकता है. पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस इज टू इम्प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द मेटल. मेटल के ऊपर, मेटल के अंदर आपका जो रेसिस्टेंस पावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए वियर रेसिस्टेंस है, कोरोशन रेसिस्टेंस है, सरफेस लुब्रिसिटी है और हीट डिसिपेशन है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट का ऊपर इफेक्ट होने के बाद में भी वो साइन करता है. डाई इलेक्ट्रिक है, मतलब नॉन कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर, और प्रॉपर्टीज हाइड्रेशन एंड एसिडिटीज, मतलब दिखने में बहुत ब्यूटीफुल मटेरियल बनाना है और अच्छा से चिपके उसके ऊपर आपको दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज यू नीड, यू हैव टू गो टू एनोडाइजिंग प्रोसेस. सो हियर मटेरियल यूज फॉर एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम. जनरली एल्यूमिनियम ही इसको इस्तेमाल करता है. इस अलाइज देन इसका अलाई यूज़ करता है मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील कैन बी एनोडाइज. जनरली मोस्ट कॉमन यूज एल्यूमिनियम. यू सी दैट ए बात, यू सी द एनोड, एनोड में जोब लगा हुआ है, ये कैथोड है और दोनों कैथोड है. एनोडाइजिंग होता है, नीड है डीसी पावर सप्लाई के हिसाब से आपका जो हिसाब से एनोडाइजिंग चाहिए इसके ऊपर मटेरियल डिपोजिट होकर वो आपका परफॉर्मेंस करता है. सो यू सी द आफ्टर एनोडाइजिंग यू सी सम कॉम्पोनेंट. देखो ये सब फिटिंग पार्ट्स है, उसका कलर कैसा है, सुंदर है, सरफेस कोटिंग किया हुआ है, कोई प्रकार का वेयर एंड टियर नहीं होगा. अब डिफरेंट कलर का आपको कॉम्पोनेंट तैयार करना है, आपको ये एनोडाइजिंग प्रोसेस कर सकता है. तो स्टूडेंट आप गो थ्रू दिस नोट्स एंड नोट डाउन. अगर आपको पसंद आ गया तो दूसरा दोस्तों को भी शेयर करना. इसका कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स को लेके अब तुरंत आपका बीच में आता है. धन्यवाद. थैंक यू.